I welcome you back for our today's topic of discussion, that is take back control of your life 14-day challenge workbook, which is written by me. Of course, my name is Professor Dattatreya Sukhdev Godke, or you can call me as a Professor D.S. Godke. Now, before proceeding towards this session, let us know each other. Now, this photograph which you are seeing right now, that I have clicked in the quest of the nature, because one of my mentor has told me that nature is the best teacher and nature is the healer as well. In order to cross check it, मतलब हम जो भी सुनते हैं, जो भी आपके मेंटर्स है, गुरुज है, उनकी बातें खाली आपको सुननी ही नहीं है, उन्हें जाके क्रॉस चेक करना भी जरूरी है ताकि वो अच्छे से आपके समझ में आ जाए. In order to understand it in well manner, what I have done, I have checked it whether that nature is the best teacher or nature is a healer, and I found that the mentor which has said that both the things are absolutely correct. This picture I have clicked in the Lonavala. That is a very beautiful place to visit, but right now, as a result of that COVID-19, you should not come out of your home as well. Once this pandemic situation will be over, definitely you can go to the Lonavala and you can have the greenery which is present over there. If you are trying to come to Lonavala, please inform me. My contact details are there in the comment box below as well as in description. Right now, I am living in the Lonavala. Now let us know each other. Let us start with my name. My name is Professor D.S. Kurki. What I have done up till now, I have completed my masters in heat power engineering. Means from engineering field, I have completed my masters. The book which I have written, that is not directly related to the engineering. Regarding engineering, almost I have written two books, and to my name, almost 17 technical research papers are there that I have published in various international journals. Okay, along with that technical, what we can say, along with that technical expertise, I have tried to write this book in order to solve the problems. Because as an engineer, what I am trying to do, जितने भी आपने इंजीनियर्स देखे होंगे, उनका एक ही मतलब होता है, वो कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम ढूंढते हैं. क्योंकि इंजीनियर मतलब वो अंदर कीड़ा होता ही होता है कि कहीं पे जाओ और जाके प्रॉब्लम्स ढूंढो, लेकिन हम वहीं पे नहीं रुकते हैं एज एन इंजीनियर या और एज एन टेक्नोक्रेट, उसका सोल्यूशन भी निकालते हैं. तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमने भी हमारी लाइफ में फेस कर लिए, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आई हैव केम आउट दिस बुक. Along with this book writing, I am doing lot many activities. Those activities are I am running a training center, or I am running a training institute where I have trained almost 1 lakh plus aspirants in different fields. That may be technical, that may be non-technical. The number of trainees I have trained technically and non-technically, that are almost 1 lakh plus. This is not a what we can say fake figure. You can go to the YouTube or you can go to the learning apps, and there you can search for my name. You have to add only hashtag in front of my name, and you can search across the internet. You will come to know which activities and what new things or what innovative things we are doing in order to improve your learning experience. तो हमने अभी तक क्या किया है, ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स भी हमने रन करने शुरू कर दिए हैं. उसमें से एक जो स्टार्टअप है हमारा, वो जो हमारे फार्मर्स है जिनकी बदौलत हम आज खाना खा पा रहे हैं, उनके लिए है. उनका बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम है वो क्या है, बाकी छोड़ दीजिए, लोन अमाउंट्स है, पानी है, ये है, वो सब हम ओवरकम करके हमारे जो भी फार्मर्स है वो क्या कर रहे हैं. वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स है, उनमें हमारा यील्ड सबसे ज्यादा है. दूध का ले लो, राइस का ले लो, इन सारे ऐसे बहुत सारे हैं. हालांकि अगर हम लेते हैं मसाला, जो भी है मसाले के जितने भी पदार्थ है, वो सारे के सारे हमारे इंडिया में ही बनते हैं. तो हमारा इशू ये नहीं था कभी भी कि वो प्रोड्यूस कैसे बढ़ा सकते हैं. हमारा इशू जो भी हमारे फार्मर्स है उनको फेस करने वाला सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में जाके कैसे सेल आउट कर सकते हैं. इसके लिए हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया था. उसमें हमने क्या किया, एक ई कॉमर्स की वेबसाइट डेवलप करके रखी है. वहां पे क्या करना है, कंज्यूमर डायरेक्टली जो भी आपके फार्मर्स है उनसे जितने भी गुड्स या प्रोडक्ट्स है फार्मर्स के, वो खरीद सकता है. ये हमारा थोड़ा सा एक छोटा सा एक प्रयास था, जिस वजह से हमने क्या कर लिया, जो कंज्यूमर था उनको भी कम कीमत में वही प्रोडक्ट मिला, एज वेल एज हमारे जो फार्मर्स है उन्हें भी थोड़ा बहुत जो इनकम है वो उन्होंने बढ़ा दी. उसकी केस स्टडीज है. हाँ, अगर वो उनके बारे में आपको और जानना है तो यू हैव टू कम बैक टू अस, और यू हैव टू ज्वाइन टू अस. डेफिनेटली वी आर देयर टू हेल्प यू.
तो उसके साथ ही हमने और एक इनिशिएटिव लिया था। उस इनिशिएटिव का नाम है, हम क्या कर रहे हैं, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक में भी काम कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं कि जो पैकेजिंग का मटेरियल है, अभी प्लास्टिक तो बैन हो गया है ऐसा बोलने के लिए है, लेकिन बहुत जगह पे हम यूज कर रहे हैं कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली। हालांकि हमें यूज नहीं करना चाहिए, जितना प्लास्टिक हम कम यूज करेंगे उतना ही हमारा जो एनवायरमेंट है वो अच्छा हो सकता है। उसके लिए हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया है, आवर पैकेजिंग सॉल्यूशंस आर देयर। देन along with that, रिगार्डिंग menstrual hygiene, अगर हम इंडिया का अगर लेते हैं तो बहुत सारी ऐसी आबादी है वो अभी तक जो सैनिटाइजेशन है, या तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारी औरतें हैं उनके जो 4 दिन के 5 दिन के 6 दिन के पीरियड्स होते हैं वो भी उतना अवेयरनेस नहीं है कि हम वो पैड्स यूज करते हैं। उसके रिगार्डिंग हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया है। जो हमारी मदर अर्थ है उसे ग्रीन करने के लिए हमने और एक इनिशिएटिव शुरू किया है। जैसे ये प्रेजेंटेशन आगे बढ़ता जाएगा, यू विल कम टू नो how you can correlate all those initiatives or all those projects with this presentation. Then right now I am writing one more book because my journey is altogether different. मतलब मैंने पहले रेसलिंग से शुरू किया था, किसी वजह से हम रेसलिंग नहीं कर पाए, वो रेसलिंग छोड़ के हमने इंजीनियरिंग कर ली। फिर इंजीनियरिंग में ज्यादा मजा नहीं आ रहा था, इसलिए हमने क्या कर लिया, इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली। उसके बाद जो इंडस्ट्री में जॉब होता है वो ना करके हम एजुकेशन फील्ड में गए। एजुकेशन फील्ड में अभी हम काम भी कर रहे हैं, उसके साथ इतने सारे जो प्रोडक्ट्स है या इतने सारे जो स्टार्टअप्स है वो हमने रजिस्टर भी कर लिए और उन्हें अच्छे से रन भी कर रहे हैं। मतलब हमारा जो यहाँ से लेके ये जो जर्नी है, मतलब हमने जर्नी शुरू की थी एक रेसलर से, अभी हम पहुंच गए कि एक प्रोफेसर भी है, एक बुक भी लिखते हैं, हाँ, उसके साथ ही कई स्टार्टअप्स रन भी करते हैं। जहां हमें मौका मिले वहां पे जाके जो हमारे देश की यूथ है उन्हें हम गाइड भी करते हैं। तो हमारी ये जो पूरी जर्नी है उसके लिए हमें क्या करना था, इस जर्नी के थ्रू आप लोगों को जितने भी सारे यंग बडिंग इंजीनियर्स है उन्हें बताना था कि एक केटी लग जाए या एक साल हमारा बैकलॉग लग जाए तो कुछ होता नहीं है उससे। हमें लाइफ में और भी मौके मिलेंगे, उससे हम बहुत ज्यादा सीखने भी वाले हैं। और वो कितना अच्छे से सीखते हैं और हमारे साथ जितनी भी घटनाएं होती है उन्हें हम रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, ये हम कैसे बदल सकते हैं। रिगार्डिंग दैट आई हैव रिटन दैट बुक, वो एंटाइटल्ड एज एक भरकट लेला इंजीनियर। आज का जो प्रेजेंटेशन है उसके लिए शुरुआत करते हैं। उसके पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताने वाला हूँ, क्योंकि ये जो स्टोरी है बचपन से लेके आज तक जो भी हमें स्टोरी के मीडियम से मिला है वो हम कभी नहीं भूल पाते। आई होप सो तो एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग लिटिल बिट इंग्लिश एंड लिटिल बिट हिंदी। हाँ, आई एम कंफर्टेबल विथ 4 लैंग्वेजेस बेसिकली। out of that I am going to use 2 languages only. Partially I will use Hindi along with some English. तो चलिए एक स्टोरी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि स्टोरियां हमें हमारे दिल के बहुत करीब होती है हम सबके। तो अगर वो स्टोरी के दौरान हम सुनेंगे तो अच्छे से याद भी रख पाएंगे और उसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे अच्छे से होगा। और ये जो वेबिनार है या ये जो सेमिनार है वो आपका लाइफ का आपकी लाइफ चेंज करने वाला वेबिनार हो, ना कि आप किसी सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पे आए। वो सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन एक सर्टिफिकेट निकाल के या एक सर्टिफिकेट छाप के आप आपकी लाइफ नहीं बदल सकते। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका आगे आने वाला 1 घंटा या ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटा फुल्ली डिवोट करना है। हमें कैसे बैठना है, जैसे कि हमें बैठना है, हमें कुछ नहीं आता है। हमारे अंदर का जो भी ईगो है, कई लोगों को लगता होगा कि हमने ये किया है वो किया है, वो सब थोड़ी देर के लिए साइड में रख दीजिए और आगे आने वाले 1 या 1.5 घंटे के लिए, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा ही अच्छे से बैठ जाइए, ताकि यहाँ से आपकी लर्निंग ज्यादा से ज्यादा हो। और इन ट्रू सेंस दिस विल बी द लाइफ चेंजिंग वेबिनार ऑफ योर लाइफ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो एक गांव था, उस गांव में क्या था, एक लड़की रहती थी उसके माता पिताजी के साथ। और जहाँ पे उनकी जमीन थी उस जमीन के बाजू से ही क्या हुआ था, एक नदी गुजरी हुई थी। मतलब हमें सबको पता है अभी नदियां जो है यहाँ पे, हालांकि हमने पानी दिखा है लेकिन ज्यादातर जो नदियां है वो सूख गई है, उनमें पानी है ही नहीं। उसके लिए भी हम जो है, हम सारे along with me we are responsible, and in order to revive those rivers we are running one project entitled as Project Green Hands. हाँ, तो जैसे हमने पहले बताया था, जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे then you will come to know how we have selected these 3 projects and how these are contributing for the well-being of society.
तो हमने कहाँ से शुरुआत की थी? एक लड़की थी, उस एक गांव में रहती थी, उनके माता पिताजी के साथ। उस गांव में एक नदी थी और उनके नदी के बाजू में ही उनका खेत था। लेकिन नदी है, सूख गई है, मतलब क्या है, वहां पे एक अच्छे से बिजनेस चल सकता है, दैट बिजनेस इज रेती का। तो गांव का जो सबसे बढ़िया जमींदार था, तो उन्होंने क्या कर लिया कि वो रेती का बिजनेस शुरू कर दिया। उसके लिए उन्होंने क्या कर लिया, गवर्नमेंट से जितने भी परमिशंस लेने थे, जितने भी क्लियरेंसेस लेने थे, सब ले लिए। लेकिन जहां पे उन्हें वो पॉइंट जो होता है, जो अलोकेट हुआ था जहां से रेती निकालने के लिए, वो जो बच्ची थी या जो लड़की थी, उसके खेत के बाजू में ही था। मतलब वहां से अगर उन्होंने रेती निकाल ली तो इसके खेत से ही लेके आना पड़ेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि ये जो जमींदार थे बड़े से, जिन्होंने ये जो कॉन्ट्रैक्ट लिया था, उन्होंने ये जरूरी नहीं समझा कि जिसके खेत से हम जा रहे हैं उनसे परमिशन ले लीजिए, लेना चाहिए, या कम से कम उन्हें पूछना तो चाहिए, हम ऐसा करने वाले हैं, क्या हम कर सकते हैं क्या, या अगर हमें ऐसा करना है तो आपको कुछ पे करने की जरूरत है क्या, या आपको कुछ पैसे देने की जरूरत है। लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ किया ही नहीं। उन्होंने क्या कर लिया, उनका जो काम होता है रैम बनाने का, मतलब जो भी व्हीकल्स है वहां पे जाएंगे, वहां से रेती निकाल के बाहर लेके जाएंगे, मे बी हाईवे या जहाँ कहीं पे भी रिक्वायरमेंट है। तो जिनकी जमीन के जो भी मालिक है उन्हें पूछे बिना ही उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। लेकिन वो इतने बड़े थे कि उनके खिलाफ कोई आवाज भी नहीं उठा सकता था। वो जो लड़की थी, उस लड़की के पिताजी जो थे, उन्होंने क्या कर लिया, हार मान ली और उन्होंने अपना चाय टपरी डाल दी। और उस चाय टपरी से उस जो फैमिली थी उसका गुजर बसर हो रहा था। लेकिन पता नहीं क्यों, ये वो जो लड़की थी छोटी सी, उसे ये बात जो है वो हजम ही नहीं हो रही थी। उसका एज बढ़ता गया, वो अच्छे से एजुकेशन करने लगी, एजुकेशन में अव्वल आने लगी, क्लास में फर्स्ट आने लगी, बाकी जो भी कॉम्पिटिशन्स है उनमें भाग लेने गई। ऐसा करते करते उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता गया और उसकी जो एज है, उसकी उम्र भी बढ़ती चली गई। अभी वो कॉलेज भी जाना शुरू कर रही थी। और कॉलेज जाना शुरू करते करते उसका कॉलेज अब खत्म होते आया था। लेकिन तभी उसने उस लड़की ने उसके माताजी के साथ बात की, और ये जो चीज उनके साथ हो रही थी पिछले कई सालों से, उसे बदलने के लिए हम कुछ ना कुछ तो करेंगे, ऐसा उन दोनों ने डिसाइड कर लिया। और एक दिन वो क्या कहीं, वो दोनों अपने खेत में चले गई और वहां पे जाके उनकी खेती बाड़ी का काम करने लगी। लेकिन जैसे ही इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया, जो जमींदार थे बड़े, तो उन्हें प्रॉब्लम क्या होने लगी कि उनके जो व्हीकल्स आने जाने में दिक्कत होने लगी। तो वो जो थे बड़े जमींदार, उन्होंने क्या कर लिया, डायरेक्टली क्या किया कि धमकाना शुरू कर दिया कि आप अगर ऐसा करोगे तो आपको आपकी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। लेकिन वो जो दो एक लड़की और उसकी माताजी थी, उन दोनों ने भी हार नहीं मानी, वो अपनी जो जिद थी उस पे अड़े रहे। और इसका जो अंजाम उन्हें भुगतना पड़ा वो बहुत ही भयानक था। एक दिन उस जमींदार का माथा घूम गया और उसने क्या कर लिया, दिन में वो उसके घर से, जो लड़की थी उसकी माताजी को घर से खींचते हुए बाहर लेके गए। गांव में एक सेंटर प्लेस होता है, उसे हम चौराया बोलते हैं। और उस चौराहे पे जाके वो क्या कर लिया, उसके ऊपर जो लड़की थी उसकी माताजी के ऊपर क्या किया, मिट्टी का तेल छिड़क दिया और सब लोगों के सामने, अच्छे से सुनिए, उन्होंने क्या कर लिया, उसे, जो लड़की की माताजी थी, उन्हें घर से खींचते हुए लेके गए। और लेके जाने के बाद सब गांव के सामने बीच चौराहे पे उसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा दी। क्या कर लिया, आग लगा दी। अभी मान लीजिए सारा गांव देख रहा था, लेकिन उस जमींदार की जो पावर थी, या तो उसका दबदबा इतना था कि कोई उसे रजिस्ट भी नहीं कर सका। लेकिन वो जो लड़की थी, उस लड़की ने उसी वक्त ठान लिया कि मेरे साथ अगर ऐसा हुआ है और कोई भी मेरी मदद नहीं करने आया है, तो मैं कुछ ना कुछ तो ऐसा करूंगी कि मेरे ऊपर जो गुजरी है, इस दुनिया में कम से कम एक के ऊपर ऐसी चीज गुजरने से मैं रोक सकूं। तो देख लीजिए उसने क्या डिसाइड कर लिया कि कम से कम इस दुनिया में जितने सारे लोग हैं उसमें से कम एक पे ऐसी मेरे जैसी जो आफत मुझे जिसके थ्रू जाना पड़ा, कम से कम एक के ऊपर ऐसी आफत आने से मैं रोक सकूं। इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना है। तो उसने अपना सपना बना लिया कि इसके लिए उसके हिसाब से, जितना उसने कुछ एजुकेशन लिया था, जिस जितनी उसे समझ थी, उस हिसाब से उसने दिमाग लगा लिया और वो यहाँ तक जाके पहुंची कि अगर मैं पुलिस अफसर बनूंगी अच्छे से,
तो हम क्या कर सकते हैं कि कोई एक पे ऐसी जो सिचुएशन है वो आने वाली हम रोक सकते हैं। उसने तब से जो पुलिस सर्विसेज का जो एग्जामिनेशन होता है उसकी तैयारी शुरू कर दी, और आने वाले कुछ ही दिनों में वो एक आईपीएस ऑफिसर बने। तो दोस्तों, आपको क्या लगा फ्रॉम दिस स्टोरी? व्हाट मॉरल और विच मॉरल वी शुड गेट? व्हाट हैज मेड हर एन आईपीएस ऑफिसर? आपको क्या लगता है वो जो लड़की थी उसे आईपीएस ऑफिसर किस चीज ने बनाया? हाँ, क्या लगता है आपको? थोड़ा सा सोचिए, दिमाग पे जोर दीजिए। दिमाग इसलिए ही है कि उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो सके। तो उस लड़की ने क्या किया कि पहले उसका वाई, मुझे बनना है तो क्यों बनना है, ये बहुत बड़ी वजह थी उसके साथ। उसने क्या सोचा था कि मेरे साथ जो घटना घटी है, कम से कम इस दुनिया में एक के ऊपर ऐसी घटना होने से मैं रोकने वाली हूँ। तो उसका पहले क्यों बहुत बड़ा स्ट्रांग था, इसलिए वो कम से कम समय में पहले ही अटेम्प्ट में आईपीएस ऑफिसर बनी। अभी हमारा क्यों इतना बड़ा हो गया है, तो उसके लिए क्या क्या लगेगा और उसके लिए क्या क्या करना होगा, मतलब हाउ है, अलॉन्ग विद दैट व्हाट है, ये हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। अगर हमारी मानो या छोड़ दो हमारी मत ही मानो, जो एक बहुत बड़े राइटर है उनका नाम है साइमन सिनेक। उन्होंने एक बुक लिखा था स्टार्ट विद व्हाई। उन्होंने बताया है कि जो वाई होता है कोई भी चीज करने के लिए, इस वाई का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो लगभग 80% होता है, या 80% जो परसेंटेज है, या 80% जो शेयर है, वो केवल और केवल आपके वाई का है। मुझे ये चीज करनी है तो क्यों करनी है? पहले जो गवर्नमेंट बोलता था कि अभी कोविड 19 से सिचुएशन खराब है, हमने लॉकडाउन कर लिया, ये हो गया वो हो गया, ये सब बता दिया। उसके बाद उन्होंने क्या शुरू कर दिया कि ये क्यों हो रहा है, इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, उतने अच्छे से जो भी गाइडलाइंस है उनका जो भी है पालन कर रहे हैं। अगर कोई ना भी कर रहा हो तो हमारी हाथ जोड़ के उनको विनती है कि जो भी गवर्नमेंट की तरफ से आपको गाइडलाइंस मिल रही है, लेट्स फॉलो दोज गाइडलाइंस एंड लेट अस हेल्प ईच अदर। तो कोई भी चीज करने में सबसे ज्यादा अहमियत किस चीज की होती है? वो चीज अगर मुझे करनी है तो क्यों करनी है? तो वो जो है वो है, व्हाट है और हाउ है। इन तीन चीजों को हमें बोलना है गोल्डन सर्कल। ये गोल्डन सर्कल हमें किन्होंने दिया था? जो राइटर है साइमन सिनेक। अगर आप यूट्यूब के थ्रू सर्च कर लोगे या कहीं पे भी जाके अगर आप साइमन सिनेक सर्च कर लेते हो तो यू विल गेट हिज इंफॉर्मेशन। तो ये जो गोल्डन सर्कल होता है वो और अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। तो चलिए, इस एग्जांपल में हम दो कंपनियों का एक केस स्टडी करने वाले हैं। अभी हम ऐसा नहीं करने वाले हैं कि ये अच्छी है ये गलत है या ये सही है वो गलत है, क्योंकि हमें किसी से भी पैसे नहीं मिले हैं कि किसी का डिफेमेशन करना है या किसी को बढ़ाना है। हाँ, खैर वो अलग बात है, छोड़ दीजिए। यहाँ पे हम केस स्टडी के तौर पे ये दो एग्जांपल्स ले रहे हैं। तो ये जो एक कंपनी है एप्पल और दूसरी जो है वो डेल है। कई साल पहले ये जो डेल कंपनी है उन्होंने क्या किया था, टीवी सेट का प्रोडक्शन शुरू किया था। लेकिन हुआ क्या कि बहुत जल्द ही उन्हें वो जो उनका प्रोडक्शन था वो बंद करना पड़ा। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों हुआ? आंसर भी आपको ही पता है। ऐसा हुआ क्योंकि हर एक के माइंड में क्या फिक्स है कि डेल कंपनी है मतलब लैपटॉप के रिलेटेड जितने भी हार्डवेयर है या कंप्यूटर रिलेटेड जितने भी हार्डवेयर है, उनका मैन्युफैक्चरिंग अगर कोई करता है देन दैट इज डेल। और इनकी एडवर्टाइजमेंट भी कैसी थी, हमने हमारे प्रोडक्ट में ये डाला है वो डाला है, ये किया है वो किया है, हमने इसमें ये इनोवेटिव टेक्निक यूज की है वो की है। लेकिन कस्टमर को वो कनेक्ट ही नहीं कर पाएगी। क्यों? कस्टमर ने ये प्रोडक्ट खरीदना है तो क्यों खरीदना है? अब आप कोई भी बिजनेस ले लो, तो वो सक्सेसफुल कब हो सकता है? जब उसे खरीदार मिले और वो ज्यादा से ज्यादा मिले। लेकिन यहाँ पे खरीदार ही नहीं मिल रहा है क्योंकि जो खरीदने वाला है उसे पता ही नहीं है कि मुझे वो प्रोडक्ट खरीदना है तो क्यों खरीदना है। इस वजह से उनका जो वो यूनिट था उन्हें जल्द ही बंद करना पड़ा।
लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी पार्ट अभी देख लीजिए, जो प्रोडक्ट एप्पल का एक प्रोडक्ट अगर मोबाइल फोन यूज करता है तो वो मैकबुक मतलब लैपटॉप यूज करेगा, लैपटॉप यूज करता है तो और स्क्रीन मॉनिटर यूज करेगा, स्क्रीन मॉनिटर यूज करता है तो स्मार्ट वॉच यूज करेगा। मतलब क्या है, अगर एक एप्पल का प्रोडक्ट हम यूज करते हैं तो सारे के सारे एप्पल के प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर देंगे। ऐसा होता है तो क्यों? क्योंकि ये जो एप्पल कंपनी है वो क्या करती है, ये जो गोल्डन सर्कल है इसका अच्छे से इस्तेमाल करती है। वो कैसे करती है? अगर आपने कहीं पे एप्पल का एडवर्टाइजमेंट सुना होगा या देखा होगा तो उनका एडवर्टाइजमेंट कैसे होता है? वो बोलते हैं, वी बिलीव इन एफिशिएंसी और इम्प्रूविंग एफिशिएंसी जस्ट लाइक यू। मतलब कस्टमर ने ये प्रोडक्ट खरीदना है तो क्यों खरीदना है पहले ही बता दिया। वी आर बिलीविंग इन इम्प्रूविंग एफिशिएंसी जस्ट लाइक यू। तो कस्टमर को ये तो क्लियर हो गया कि ये क्यों खरीदना है, उसमें उन्होंने क्या क्या किया है, उसके लिए क्या क्या यूज किया है और उस प्रोडक्ट में क्या क्या है, ये उन्होंने लास्ट में बता दिया। पहले क्या बता दिया कि आपको ये प्रोडक्ट खरीदना है तो क्यों खरीदना है। तो अगर आपको कोई भी नई चीज या कोई भी बिजनेस अगर सक्सेसफुल बनाना है तो आपको क्या करना होगा, इस गोल्डन सर्कल के अंदर से बाहर जाना है। मतलब पहले आपका वाही क्लियर होना चाहिए, उसके बाद वो चीज कैसे कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है वो आसानी से आप डिसाइड कर सकते हो या सर्च आउट कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा अहमियत इस वाई की होती है। जितना आप वाई पे फोकस करोगे उतना ही आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। I hope so everyone has understood the golden circle. Throughout your life, you can start using it. In each and every area, you can use this technique in order to enhance the quality of your life. जिसके लिए आज हम यहाँ पे आए हैं उसकी शुरुआत करते हैं। हमने ये जो बुक लिखा है, इस बुक में ये सिंपल फॉर्मूला है, खाली E प्लस आर इज इक्वल टू, इस फॉर्मूला के ऊपर ये पूरा का पूरा बुक है। अभी आपको लगेगा कि इतना छोटा सा फॉर्मूला तो है, इसके ऊपर इतना बड़ा बुक लिखने की जरूरत क्या है। तो आगे जितने भी स्लाइड्स आने वाली है उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि ये लिखना क्यों जरूरी है या तो आपको ये पढ़ना क्यों जरूरी है। क्योंकि अभी आपको मार्केट में सेल्फ हेल्प के रिलेटेड बहुत सारे बुक्स मिलेंगे, बहुत सारे बड़े बड़े ऑथर, बड़े बड़ी चीजें सब मिलेंगी, लेकिन ये स्पेसिफिक जो ई बुक है वो आपको क्यों लेना है ये हम आगे आने वाली कुछ स्लाइड्स में क्लियर कर लेंगे। ई प्लस आर इज इक्वल टू, दैट इज नथिंग बट इवेंट प्लस रिस्पॉन्स इज इक्वल टू आउटकम। लेकिन जैसे कि अभी हमने गोल्डन सर्कल देखा, ये फॉर्मूला क्या है क्यों है बाद में देखेंगे, उसके पहले ये फॉर्मूला क्यों यूज करना है। तो हम शुरुआत करने वाले हैं रामायण से। तो क्योंकि ये सबके दिल के करीब का टॉपिक है, सबको कुछ ना कुछ तो पता रहेगा रामायण के बारे में। तो रामायण के बारे में सबको क्या पता है, जो राम थे वो अयोध्या के राजा होने वाले थे। उनके पिताजी का नाम क्या था? दशरथ था। वो इतने पराक्रमी राजा थे उस एरा के। अभी ये मत सोचिए कि ये सच में घटा था या ना नहीं घटा था, अभी ये हमारे डिस्कशन का सब्जेक्ट ही नहीं है। हमें यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि इससे हम क्या सीख सकते हैं, ना कि ये हुआ था या नहीं हुआ था। लेट अस कीप दैट असाइड। इसके लिए हमने पहले ही बोला था, आपका जो ईगो है या आपको लगता है हमें बहुत कुछ आता है, तो आपके माइंड के अंदर कुछ भी नहीं जाएगा, इससे आप कुछ भी एक्सट्रैक्ट लर्निंग नहीं कर सकते हैं। तो इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम लर्निंग्स कीप योर ईगो असाइड। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जो दशरथ थे वो इतने पराक्रमी राजा थे कि जब देवी देवताओं को दैत्यों से या राक्षसों से युद्ध करना होता था तो वो उनकी मदद लेने आते थे ताकि हमारी हार ना हो। इतने बड़े पराक्रमी राजा थे। वो जो दशरथ थे उनकी 3 बीवियां थी या 3 रानियां थी। अभी ये सारा डिस्कस करते बैठ गए तो बहुत सारा समय चला जाएगा, वी आर हैविंग टाइम लिमिट, लेट अस गो अहेड। तो उनकी सबसे प्रिय जो पत्नी पत्नी थी उनका नाम था कैकेयी। तो एक दिन कैसे हुआ कि जो दशरथ राजा थे उन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दी कि आने वाले कुछ दिनों में एक डेट डिसाइड कर ली और उस डेट पे ये जो राम है उन्हें हम अयोध्या का राजा घोषित करने वाले हैं, वो ऐसा उन्होंने बता दिया। अभी
जो राजकुमार है उनका राज्याभिषेक होके वो अगर राज्यकर्ता बनने वाले थे, तो उसकी सारी तैयारी में सारे लोग लग गए, लेकिन राम की जो पर्सनैलिटी वो ऐसी थी कि सबके सब इतने खुश थे कि वो हर कोई अपने काम से कुछ ज्यादा करना चाहता था। लेकिन जो कैकेयी थी, उनकी एक दासी थी, उन्हें राम इतने अच्छे नहीं लगते थे। उन्होंने क्या किया, कैकेयी के पास चले गए और उन्हें बोल दिया, आप तो दशरथ राजा की प्रिय पत्नी है, फिर भी दशरथ राजा आपके बेटे को राजा ना बनाते हुए किसी दूसरी पत्नी का जो राम है उन्हें राजा बनाने वाले हैं, ये आप कैसे सहन कर सकती है। तो ये जो है अंगारे जो कैकेयी है उनके सीने के अंदर धड़कने लगे। तो वो सोचने लगी कि मैं दशरथ से कैसे मांग सकती हूँ या कैसे उन्हें मनवा सकती हूँ कि मेरे बेटे को राजा कर दीजिए। तभी उनके दिमाग में एक बात आई कि ऐसा ही एक युद्ध हुआ था बहुत साल पहले, जिस युद्ध में जो दशरथ थे उन्होंने देवी देवताओं को मदद की थी। और जो युद्ध हो रहा था उसके दौरान उनका जो रथ था, उस रथ का जो पहिया होता है वो टूट गया था। पहिए के बाजू में जो कोनी होती है वो टूट गई थी। और अगर मेरे पति का ध्यान उसके तरफ चला गया तो वो युद्ध लड़ना वहां पे ज्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये जो कैकेयी है उन्होंने उसमें हाथ डाल दिया था। तो वो बात जो दशरथ राजा थे उनको उस समय इतनी अच्छी लगी थी कि उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया था कि आपको जो कुछ चाहिए, ऐसी दो चीजें इस ब्रह्मांड में आप जो भी चाहिए वो आप हमसे मांग सकती है, हम आपको लाके देंगे। लेकिन कैकेयी ने तब क्या किया था, उन्हें बताया था, राइट नाउ आई एम नॉट इन नीड ऑफ एनीथिंग, मतलब मुझे अभी किसी चीज की जरूरत नहीं है, जब भी जरूरत पड़ेगी तब मैं आपसे मांग लूंगी। तो शायद कैकेयी जी ने सोचा होगा कि मेरा टाइम आएगा, अभी उनका टाइम आया था। और उनने बोल दिया कि आपको याद है एक ऐसा युद्ध हुआ था, उस दौरान आप हमसे बहुत खुश हुए थे और आपने हमें दो आश्वासन भी दिए थे। राजा बोला, मुझे अच्छे से याद है, आज भी आप मांग सकते हो, आपको जो चाहिए वो मैं आपको लाके दे सकता हूँ। तो कैकेयी ने थोड़ा बहुत और एक बार बोला कि देख लीजिए, अच्छे से सोच लीजिए, एक बार अगर आपने हाँ बोल दी अभी, तो बाद में मेरी शर्तें सुनने के बाद ना नहीं बोल पाओगे। तो जो दशरथ था वो बोले कि आपको शायद पता नहीं है कि हमारी पहुंच कहाँ तक है या हम कितने पराक्रमी या बलशाली हैं। ऐसी इस दुनिया में कोई भी चीज नहीं है जो हम आपको नहीं लाके दे सकते। तो इतना एश्योरेंस मिलने के बाद कैकेयी खुश हो गई, उनके चेहरे पे एक हल्की सी हंसी आई और उन्होंने दशरथ राजा से मांगना शुरू कर दिया। आपने अभी जो ऐलान किया है कि आपके बेटे को राजा बनाना है, मतलब राम को राजा बनाना है, तो आपको क्या करना है, राम की जगह पे हमारे बेटे को मतलब भरत को आपको राजा बनाना है। ये बात सुनते ही दशरथ राजा जो थे उनके पाँव के नीचे की जमीन फिसल गई और वो जो उनका सिंहासन था उससे गिर के नीचे बैठ गए। तो ये भी कैकेयी जी ने नहीं देखा, उन्होंने दूसरी शर्त उनकी बता दी कि आपके जो प्रिय पुत्र है राम, उनको उनकी पत्नी सीता जी के साथ 14 साल अयोध्या से दूर वनवास काटने के लिए चला जाना है। ये जो उन्होंने दूसरी चीज मांगी थी, उस वजह से क्या हुआ, जो दशरथ राजा थे उनके दिल में ये इतना बड़ा घाव कर गई कि वो मूर्छित होके वहां पे ही गिर गए। तो वो सोच रहे थे कि अगर मैंने शब्द तो दिया है, मतलब मैंने वचन तो दिया है, उन्हें आश्वस्त तो किया है, तो मुझे कुछ भी करके ये पूरा तो करना पड़ेगा। तो वो बार बार कैकेयी जैसे विनती कर रहे थे कि आप दूसरा कुछ मांग सकती है, आपने मांगा भी तो क्या मांगा। तो कैकेयी बोली कि आपको मैंने पहले ही बोला था, आप बाद में ऐसा मुकर नहीं सकते। तो दशरथ राजा वो जो है वो बहुत नाराज हो गए और नीचे ही बैठ के उन्होंने क्या बोला, जो उनके बाजू में वहां पे जो खड़ा था उन्हें बता दिया कि राम जी को जाके बुला के लाइए। तो वो जो सेवक था वो दौड़ के चला गया और राम जो थे उन्हें बुला के लेके आया। राम जैसे ही वहां पे आने लगे तो उन्होंने देखा कि इतना बड़ा इतना पराक्रमी जो राजा था वो आज सिंहासन की वजह नीचे गिरा हुआ है और वो इतनी चिंता में है, इतनी चिंता में राम ने कभी भी दशरथ राजा को नहीं देखा था।
तो ये जो बात थी वो राम जी के दिल पे लगी। वो राजा के पास, अपने पिताश्री के पास चले गए और उन्हें पूछा, ऐसी कौन सी बात है जो आपके मन को खाए जा रही है? आप खाली हमें बता दीजिए, चाहे जो कुछ करना पड़े मैं वो करके आपको चिंता मुक्त करना चाहता हूँ। फिर भी दशरथ इतने दशरथ को इतना दुख हुआ था कि वो कुछ बोल ही नहीं पाए। वो कैसे बोलते कि तुम्हारी माँ ये चीजें मांग रही है। तो एक दो बार बोलने के बाद भी ये दशरथ राजा से उन्हें राम को कुछ भी पता नहीं चल रहा था। उन्होंने क्या किया, उनके बाजू में जो उनकी माताश्री बैठी थी कैकेयी, उनके पास चले गए और बोला कि मेरे पिताजी को किस बात की चिंता खाई जा रही है। तो जो कैकेयी थी उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो कैकेयी जी ने बोला कि मैंने आपके पिताजी से पहले ही मांग बोला था कि मुझे दो चीजें मांगने का वरदान आपने दिया है। तो वो जो दो चीजें हैं वो मैंने उनसे अब मांग ली, लेकिन वो अब पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो राम हंसते हुए बोले, माताश्री ऐसी कोई भी चीज नहीं है इस दुनिया में, जितना मुझे पता है, जो मेरे पिताश्री कम पूरी नहीं कर सकते। तो कैकेयी जी बोली, तो आप कर पाओगे वो जो नहीं कर पाएंगे? तो राम बोला कि मेरे कुछ करने से अगर मेरी पिताश्री की चिंता कम हो जाती है, देन आई एम रेडी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जो कोई भी चीज हो आप हमें बता दीजिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर से जो कैकेयी जी थी उनके चेहरे के ऊपर एक हल्की सी मुस्कान आई। तो उन्होंने बता दिया कि क्या करना है, आपकी जगह पे मेरे भरत को राजा बनाना है, और दूसरी जो चीज है वो है आपको आपकी पत्नी के साथ वनवास काटने अयोध्या से दूर चले जाना है। तो राम ने एक हल्की सी हंसी दिखाई और उन्होंने बोला कि बस इतनी सी बात है। अभी देख लीजिए, राम के साथ जो इवेंट हुआ था उसे उन्होंने जो रिस्पॉन्स दिया था, उस हिसाब से उनका जो आउटकम मिला था वो उतना जरूरी था और उतना अहमियत रखता था। और उसके बाद जो कुछ हुआ, दैट इज रिटन इन द हिस्ट्री, वी ऑल नो दैट। लेकिन हमें यहाँ पे फोकस कहाँ पे करना था? हमारे साथ जितनी भी घटनाएं घट रही है उन्हें हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, ना कि रिएक्ट करते हैं। यहाँ पे अगर राम जी ने रिएक्ट किया होता कि मैं राजा बनने वाला हूँ, मैं क्यों वनवास काटने चला जाऊं, तो शायद आउटकम कुछ अलग होता। और आज जो हम राम को इतना मानते हैं वो उतना उतना शायद ही मान पाते हम। तो हमें बताना ये है कि हाउ मच इम्पोर्टेंस दिस E प्लस आर इज इक्वल टू सिंपल फॉर्मूला प्लेज इन यूर लाइफ। ये जो सिंपल फॉर्मूला है वो अगर आप अच्छे से मास्टर कर लोगे, तो अभी ये सुनने के लिए सही लग रहा है, बहुत आसान लग रहा है, लेकिन हर एक सिचुएशन में आपको क्या करना है, हर एक सिचुएशन में आपका जो रिस्पॉन्स है वो आपको कॉन्शियसली देना है, ताकि आपको अच्छा आउटकम मिल सके। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ये मूवी तो आप सब ने देखी रहेगी, मूवी है साउथ की, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो उसके बारे में बात करने से पहले लेट अस डिस्कस थ्री टर्म्स। विक्टिम कौन होता है, प्लेयर कौन होता है, हीरो कौन होता है। तो अभी स्टोरी इनसाइड अ स्टोरी। तो अभी ये अच्छे से समझने के लिए हम और एक स्टोरी जान लेते हैं। तो चलिए, हम क्या करते हैं, हर कोई काम पे चला जाता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में अगर हम कहीं पे जाके लेट पहुंचते हैं तो क्या बोलना शुरू कर देते हैं? सबसे पहला हमारा जो रिप्लाई होगा वो क्या होगा, अरे यार ट्रैफिक ही बहुत ज्यादा था। मतलब जैसे ही हम बोलते हैं ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, मतलब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से कतरा रहे हो। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी कि कहीं पे किस जगह पे आपको टाइम पे पहुंचना था, लेकिन आपने बहाना ढूंढना शुरू कर दिया। जैसे ही आपका बहाना ढूंढना शुरू हो जाता है, आप जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे दूर भागना शुरू कर देते हैं। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागता है, दैट इज कॉल्ड एज अ विक्टिम। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागता है वो कौन होता है, विक्टिम। अब इससे हम एग्जांपल देख लीजिए। मुझे पता है, हर एक को पता है ट्रैफिक उतना ही रहने वाला है। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट प्रॉब्लम व्हाट आई कैन डू, अगर मान लीजिए मैं 9:30 बजे ऑफिस पहुंचने के लिए 9 बजे निकल गया और लेट हो गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं उसकी जिम्मेदारी ले सकता हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, जो मैं 9 बजे निकलने वाला हूँ वो मैं 8:45 या 8:50 को निकल सकता हूँ।
ताकि मैं समय रहते या समय से पहले ही अपने काम पे पहुंच जाऊं। अभी देख लीजिए, हमने थोड़ी सी या छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, लेकिन हमें आउटकम क्या मिला कि हम जो विक्टिम बनने वाले थे, इंस्टेड ऑफ दैट वी हैव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नाउ यू आर अ प्लेयर। मतलब आप अभी गेम में हो, लेकिन पहले आप गेम से दूर भागने की कोशिश कर रहे थे, तभी आप विक्टिम थे। अभी हम क्या हो गए, प्लेयर हो गए। अभी देख लीजिए, जो प्लेयर होता है वो अगर हीरो में हमें कन्वर्ट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। तो प्लेयर क्या कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हीरो बनने के लिए हमारे आजू बाजू जितने लोग हैं उनके लिए जो एक चीज अच्छी है उसके लिए अगर हम खड़े होते हैं, देन प्लेयर विल बी कन्वर्टेड इनटू हीरो। नाउ ये हर बार जरूरी नहीं है कि आप हर एक चीज में हीरो हो, लेकिन एटलीस्ट आप विक्टिम बनने की जगह पे प्लेयर तो बन सकते हैं। So in order to understand that being victim, player or a hero, let us see this movie clippings that you will get the outcome. तो यहाँ पे हमने क्या बताया आपको, if you change the way you respond then you can change whole your life और ultimately you can change the whole world। क्योंकि पूरी जो दुनिया है वो कोई अलग एंटिटी नहीं है, हम सबको मिला के ही दुनिया है। हम सब अगर बदल गए तो डेफिनेटली जिस दुनिया में आज हम जी रही हैं वो भी बदल जाएगी। तो आगे जाके आपको इस बुक में क्या क्या मिलेगा, लेट अस डिस्कस ऑन दैट। रिसर्च की है वो करके हमने एक बुक लिखा है। अलॉन्ग विद दैट यू विल गेट वर्क बुक एज वेल। मार्केट में आपको बहुत सारे बुक तो मिलेंगे, लेकिन उस बुक के साथ आपका जो लर्निंग है वो डीपन करने के लिए आपको वर्क बुक बहुत ही कम बुक के साथ मिलेगा, जो सेल्फ हेल्प के रिगार्डिंग है। तो जो हमारा पहला चैप्टर है दैट इज रिगार्डिंग अ लिटिल बैकग्राउंड रिलेटेड टू ई प्लस आर इज इक्वल टू ओ, मतलब इवेंट प्लस रिस्पॉन्स इज इक्वल टू आउटकम। इस फॉर्मूले का बैकग्राउंड क्या है। जनरली ये फॉर्मूला जो था वो इन्वेंट किन्होंने किया था, एक जैक कैनफील्ड बोल के एक फिलोसोफर है, उन्होंने वो इन्वेंट किया था। या तो ये अगर आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, रामायण का एग्जांपल ले सकते हैं, जो हमारे राम थे उन्होंने इन्वेंट किया है। Then second chapter is related to how we can convert old events into, or how we can change our old events by giving new responses। मतलब अभी तक हमने जो एग्जांपल्स देखे या अभी तक जो डिस्कशन हुआ उसके बेस पे हम क्या बोल सकते हैं, हमें जो भी आउटकम मिलता है दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्सेस विच वे आर गिवन। डिपेंडिंग अपॉन मतलब जो हम रिस्पॉन्सेस दे रहे हैं उसके ऊपर ही हमें जो आउटकम मिलने वाला है दैट इज डिपेंडेंट। तो तीसरा चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके ओल्ड रूटीन्स है उन्हें हम कैसे इन्हांस कर सकते हैं। जो पुरानी आपकी जो आदतें हैं, बैड हैबिट्स, हाउ वी कैन गेट रिड ऑफ इट। नई आदतें कैसे बना सकते हैं, उनका जो भी आउटकम है वो लिवरेज कैसे कर सकते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं। और ये जो हमने पहले 3 चैप्टर के जो हमने डिस्कशन किए उसके ऊपर हमने क्या रखा है, डे 1 एक्सरसाइज, डे 2 एक्सरसाइज और डे 3 एक्सरसाइज। मतलब हमने पहले दिन में जो कुछ सीखा ज्यादा नहीं होगा, 5 से 10 पेजेस के दरम्यान ही रहेगा वो। उतनी पेजेस तो हम हर एक दिन में पढ़ सकते हैं हमारे हिसाब से कम उतना तो करना होगा। अगर हमारी लाइफ हमें ट्रांसफॉर्म करनी है तो कम से कम 10 पेज पढ़ने के लिए हमें टाइम तो निकालना पड़ेगा ही। इसके लिए कोई भी शॉर्टकट या सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो हमने पहले दिन में क्या पढ़ा था या क्या सीखा था,
उसका जो लर्निंग है वो डीपन करने के लिए हमने क्या किया है, एक 4 से लेके 5 क्वेश्चंस है। आपको क्या करना है, उन 5 जो क्वेश्चंस है उनके आपको आंसर ऑनेस्टली लिखना है, बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ। थोड़ी देर के लिए लगेगा कि हम ज्यादातर देर तक क्या करते हैं, खुद की नजर में हीरो बनने के लिए बहुत सारे ऐसे तरीके हमने अपना रखे हैं कि खुद को सेल्फ ग्लोरीफाई करते हैं, वो होते भी नहीं है हम फिर भी करते हैं। और उसका अल्टीमेट इफेक्ट होता है, वो जो एरिया है उस एरिया में हम वीक होते जाते हैं और हमारी लाइफ जो क्वालिटी है लाइफ की वो उतनी अच्छी नहीं होती, या हम हमारी लाइफ को वहां तक नहीं लेके जा सकते जहां तक हमने डिजायर किया था। उसके बाद हम चैप्टर 4 देखने वाले हैं। चैप्टर 4 में हम देखने वाले हैं रिस्पॉन्डिंग डिफरेंटली एट होम एंड वर्क। ज्यादातर लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे मिस्टेक कर लेते हैं। वो क्या करते हैं, काम का स्ट्रेस घर पे लेके आते हैं, घर का स्ट्रेस काम पे लेके चले जाते हैं। हाउ यू कैन गेट rid of this problem, that we are going to discuss in the चैप्टर नंबर 4। वहां पे भी क्या रहेगा, जो हमने अभी तक पढ़ा है इसके ऊपर हमने क्या किया है, एक 4 से लेके 5 क्वेश्चनर्स तैयार किए हैं, उनके आपको आंसर्स लिखने हैं ताकि आपकी जो लर्निंग है वो डीपन हो सके। नेक्स्ट जो हमने बोला था, वो जो 5th चैप्टर था, वहां पे हम क्या करने वाले, वी आर गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग टेकिंग 5% मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब अभी जो हमने बिगिल मूवी का एक मूवी क्लिपिंग्स देखा, उसमें हमने देखा हाउ वी कैन कन्वर्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम बीइंग अ विक्टिम टुवर्ड्स बीइंग अ प्लेयर टुवर्ड्स बीइंग अ हीरो। मतलब हम अपने आप को विक्टिम, प्लेयर या हीरो कैसे बना सकते हैं। एंड बेस्ड ऑन दैट व्हाट वी हैव लर्न, few questions are there, to those few questions you have to give the answers honestly. Then in day 6 what we are going to, or in 6th chapter what we are going to learn, we are going to learn responding to opportunity। ज्यादातर लोग जो इस दुनिया में होते हैं वो क्या करते हैं, सिक्योरिटी के पीछे भागते हैं। और बहुत जो सक्सेसफुल लोग हैं या मिलेनियर्स है या बिलियनियर्स है वो बोलते हैं देयर इज अ नथिंग कॉल्ड एज ए सिक्योरिटी इन आवर लाइफ। लेकिन ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो सिक्योरिटी के पीछे भाग रही है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट दे एंड अप विथ नो सिक्योरिटी, विथ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे हमने ये डिस्क्लोज करके एक नई टेक्निक आपको सिखाने की कोशिश की है। उसमें आप अपॉर्चुनिटीज कैसे ग्रैब कर सकते हैं, उन्हें कैसे एनकाउंटर कर सकते हैं, और उनको एनकाउंटर करके आपकी सिक्योरिटी आप कैसे बढ़ा सकते हैं। As usual, based on that, what you have learned, few questions are there. Being yourself, you have to write the answers to those questions. देन नेक्स्ट जो आपका रहेगा, वो जो चैप्टर नंबर 7 है उसमें हमने एक्सटर्नल वर्सेस इंटरनल रिस्पॉन्सेस के ऊपर बात की है। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, कोई सामने वाला गलती करता है, तो जिसने गलती की है उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली उनकी गलती के लिए हम खुद ही सफर हो रही है। उसे वो ऐसा करना नहीं चाहिए था, वो ऐसे कर ही कैसे सकता है। तो हमारे अंदर से जो रिस्पॉन्स आ रहा है दैट इज 100% इन आवर कंट्रोल। तो वो हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा टाइम हम सफरर ना होके या तो प्लेयर बने या तो हीरो कैसे बन सकते हैं, दैट वी हैव डिस्कस्ड इन दैट चैप्टर नंबर 7। देन नेक्स्ट कम्स द चैप्टर नंबर 8, दैट इज ब्लेमिंग एंड कंप्लेनिंग। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, या तो किसी को ब्लेम करते हैं अगर मुझे कुछ नहीं आता है, या मैं कंपनी में अच्छी ग्रोथ नहीं कर रहा हूँ, मेरा प्रोडक्ट सेल आउट नहीं हो रहा है, तो उनके पास हजार बहाने होते हैं। जैसे कि हमने देखा कि अगर हम ऑफिस लेट पहुंचते हैं तो वहां पे वो जस्टिफाई करने के लिए कि हम कितने इनोसेंट है, हमारे पास हजारों रीजंस पड़े हैं। लेकिन जैसे ही हम वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देते हैं, देन वी विल बी प्लेयर एंड फाइनली वी विल बी कन्वर्टेड इनटू हीरो। And based on that, few questions are there. Being true to yourself, you have to write the answers of those questions. In next subsequent 9th chapter, we are going to discuss related to difficult relationships. This will be the most important topic because right now many problems, मतलब हमारे दुनिया में जितने ज्यादा प्रॉब्लम हो रहे हैं वो रिलेशंस की वजह से हो रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। वो रिलेशन किस लिए खराब हो रहे हैं कि एक अच्छी सी बात है और छोटी सी बात है, वो हम क्या कर सकते हैं, हमें अगर गुस्सा आता है वो बहुत आसानी से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन हमें उनसे प्यार है या हम उन पे मरते हैं वो एक्सप्रेस करने के लिए इतने आसान तरीके नहीं है, या तो हम उतनी आसानी से एक्सप्रेस नहीं कर सकते।
बहुत बार हम खुद को ही रोक देते हैं, हम बोलते हैं अगर प्यार है वो जताने की या बताने की जरूरत क्या है। लेकिन हमारा ह्यूमन जो साइकोलॉजी है या ह्यूमन जैसे बिल्टअप हुए हैं वो इसलिए हुए हैं कि जितना ज्यादा आप लव उनको शो करेंगे उतना ही आप उनके साथ एक्सप्रेसिव होते जाएंगे, उतना ही उनके साथ आपका रिलेशन स्ट्रॉन्गर होता जाएगा। ये हम कैसे कर सकते हैं? तो हम ज्यादातर लोगों को बताते हैं कि जहां तक आपको मौका मिले, जब जब आपको मौका मिले वहां पे आपको ये कोशिश करनी ही करनी है कि आप जितने अच्छे से आपका जो प्यार है वो जता सको, वो बहुत बेहतर रहेगा। Then in chapter number 10 we have discussed regarding difficult situations। मतलब ये जो सारी चीजें हम बोल रहे हैं ये बोलने के लिए सही है, लेकिन जब हम उन सिचुएशन के दौरान जाते हैं तो हम कैसे अपने आप को ऐसे बना सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग टू एवरी सिचुएशन वी विल स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग टू इट। तो वो हमने चैप्टर नंबर 10 में डिस्कस किया है कि हाउ वी कैन हैंडल द डिफिकल्ट सिचुएशंस एंड इंस्टेड ऑफ बीइंग और बिकमिंग अ विक्टिम हाउ वी कैन बिकम अ प्लेयर और हाउ वी कैन बिकम अ हीरो। That we have discussed in the chapter number 10, obviously along with few questions which will deepen your learning regarding how we can handle the difficult situation। देन उसके बाद जो 11th चैप्टर है उसमें हमने देखा है कि हाउ वी कैन टैकल द इनकम्प्लीटनेस। मतलब अभी देख लीजिए हम बहुत सारी चीजें करते हैं, अभी कभी हमें लगता है कि हम अच्छे से लिख सकते हैं, अच्छे से पेंटिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं और हम शुरू भी कर देते हैं। कई लोग ब्लॉग लिखना शुरू कर देते हैं, कई लोग यूट्यूब का कोई चैनल शुरू कर देते हैं, शुरुआत में 8-10 वीडियो अपलोड भी कर देते हैं, लेकिन उसके बाद उन चीजों से वो उब जाते हैं और वो बीच में ही छोड़ देते हैं। तो इसके पीछे का साइंस और लॉजिक क्या है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दैट chapter number 11, and we are going to offer some solutions which will help you to complete those things, followed by few exercises or few questions will be there, and being true to yourself you have to answer those questions. Now in chapter number 12 we are going to discuss regarding the ignorance। मतलब हम कई बार क्या करते हैं, कई बार कुछ चीजें इग्नोर करना अच्छा भी होता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा चीजें इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चल रहा है कि उन चीजें इग्नोर करने का हमारी लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो वो हम क्या कर रहे हैं कि ऐसे जैसे अभी हमने एग्जांपल्स लेके अच्छे से समझ लिया, वहां पे भी हमने एग्जांपल्स लेके वो समझाने की कोशिश की है कि हाउ इग्नोरेंस इज नॉट अ ब्लिस, फॉलोड बाय few questions will be there and you can give the answers to those questions being true to yourself। देन उसके बाद जो आता है डे नंबर 13 एंड डे नंबर 14। अभी हमने इतना सब कुछ सीख लिया, वो सब सीख के वो यूज करके हम कुछ ना कुछ नया शुरू करने की या जो कर रहे हैं वो और अच्छे से करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, हाउ वी कैन क्रिएट इट। Depending upon that we had some discussion, we had some research which we have gone for, we have added some research which is done by the psychologists or few journals, few magazines, by interviewing some of the peoples. We came to know that how we can create something new, and followed by few questions will be there in order to understand or enhance the learning। And finally ये सब हमने कर लिया, लेकिन ये छोटी छोटी जो चीजें हैं वो हमें सेलिब्रेट भी करनी चाहिए। और रिसेंटली जो एक रिसर्च हुआ उसमें क्या साबित हुआ कि हम जितने छोटे छोटे विंस, हमारे जो विंस होते हैं वो जितने ज्यादा सेलिब्रेट करेंगे उतनी ही हमारा परफॉर्मेंस है वो बढ़ता जाएगा, उतनी ही जो हमारी एबिलिटी है, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, दैट विल ग्रो ऑन एनहांसिंग। तो ये जो है वो हमने लास्ट में चैप्टर नंबर 14 में डिस्कस किया है, वहां पे बेस्ड ऑन दैट यू विल गेट एक्सरसाइजेस। नो इतना सारा आपको मिल रहा है, मतलब एक बुक मिल रहा है, उस बुक के अंदर हर एक चैप्टर का लर्निंग एनहांस करने के लिए फ्रॉम फॉर ट्रांसफॉर्मिंग योर लाइफ वी हैव प्रिपेयर्ड वर्क बुक एज वेल। आपको क्या लगता है ये जो सारी चीजें आपको मिलनी चाहिए, इसका प्राइस कितना हो सकता है या कितना होना चाहिए? तो इसका प्राइस हमने कुछ भी डिसाइडेड नहीं रखा है, उसके लिए हम नहीं बैठे कि किसके लिए अफोर्डेबल हो सकता है, किसके लिए अफोर्डेबल नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने ये जो बुक लिखना शुरू किया था ये इसलिए नहीं शुरू किया था कि इससे हमें कुछ पैसे कमाने हैं। हमारा जो टोटल इंटेंशन है, प्योर इंटेंशन इज टू हेल्प यू आउट।
अगर हर कोई अपनी लाइफ में अच्छे से गुजर बसर कर रहा है तो डेफिनेटली वी विल कंप्लीट और वी विल अचीव आवर मिशन इज टू क्रिएट अ मोर पीसफुल, जॉयफुल एंड लवेबल वर्ल्ड। उसके लिए हमने क्या किया है, आपको जो मर्जी अच्छा लगे उतनी अमाउंट आपको पे करके ये बुक लेना है। तो कई लोगों को लगेगा कि आप बोल रहे हो कि आपको ये बुक पैसा कमाने के लिए तो नहीं लिखा है, आप बोल रहे हो कि हमें मदद करने के लिए रखा है, फिर भी आपने ये जो पे एज यू विश क्यों रखा है? क्योंकि राइट नाउ वी आर रनिंग 3 प्रोजेक्ट्स विच आर प्रोजेक्ट ग्रीन हैंड्स, प्रोजेक्ट से यस टू मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड फाइनली स्पॉन्सर ए चाइल्ड्स एजुकेशन। ये 3 प्रोजेक्ट हम रन कर रहे हैं, उसके लिए फाइनेंस की जरूरत है। आप सब अगर इकट्ठे हो सकते हो और हमें मदद कर सकते हो दैट विल बी मच बेटर, बिकॉज हाउ मच आई अलोन कैन अचीव, लॉट मेनी limitations are there, but if we all will combine together then there will be no any limitations and whatever we want to achieve definitely we will get it। है, प्रोजेक्ट ग्रीन हैंड्स है, से यस टू मेंस्ट्रुअल हाइजीन है और फाइनली एजुकेट ए रूरल चाइल्ड है। वो क्या है? तो पहला जो प्रोजेक्ट ग्रीन हैंड्स है उसमें हम क्या कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो ग्रीनरी है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको आपके बर्थडे पे, आपके एनिवर्सरी पे पेड़ लगाना पॉसिबल नहीं है, देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन सेंड अस ₹42 ओनली, and in those 42 rupees we will plant a tree on behalf of you। GPS coordinate of that tree where we have planted that tree on your behalf, that will be shared with you intermittently। और उस जो पेड़ लगाया है या सैपलिंग लगाया है उसकी ग्रोथ कितनी हुई है वो इंटरमिटेंटली आपको बता दी जाएगी। उसके बाद जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है, हमारा इंडिया अगर देखते हैं तो बहुत सारी बच्चियां अभी भी ऐसी है, वो उन 4 दिनों के लिए उनका जो स्कूल है, कॉलेज है, उसमें जा नहीं पाती क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर उतना अवेयरनेस नहीं है और ज्यादातर लोग जो है वो सैनिटरी पैड्स नहीं यूज करते हैं। उसके लिए हमने क्या किया है, एक सैनिटरी पैड डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट खड़ा किया है। वो क्या करता है, जो सैनिटरी पैड है वो तैयार करता है, उसमें कोई भी प्लास्टिक वगैरह हम नहीं यूज करते हैं और उसकी कीमत खाली 1.8 रुपीज पर पैड है। और मार्केट में अभी अगर जाते हो तो उस पैड की कीमत आपको कम से कम 5 या 6 रुपए मिलेगी। और उसके साथ दिक्कतें क्या क्या है, जितने ज्यादा हम पैड्स यूज करते जाएंगे वो क्या होंगे, हम अभी उन्हें डिस्पोज तो नहीं कर रहे, तो आने वाले लगभग 10 सालों के अंदर हमारे इंडिया में जहां पे हम खड़े हैं, विद इन अ स्क्वायर फुट ऑफ एरिया यू कैन फाइंड 21 to 22 यूज्ड पैड्स। तो क्या होगा, वो कितना अनहाइजेनिक होगा। और वो जो पैड्स बाकी कंपनियां जो बना रही है उनमें वो प्लास्टिक्स या नायलॉन यूज कर रही है, तो वो जो प्लास्टिक है वो तो डिसइंटीग्रेट नहीं होगा। लेकिन हमने कोई भी प्लास्टिक नहीं यूज किया है, हमने जो यूज किया है वो बायोडिग्रेडेबल है, मतलब 6 महीने के अंदर वो पूरा का पूरा डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। इंटरमिटेंटली जहाँ पे भी हमें टाइम मिलता है, मौका मिलता है, हम अलग अलग स्कूल्स कॉलेजेस में जाते हैं और वहां पे जाके अवेयरनेस के लिए काम भी करते हैं और विद इन 1.8 रुपीज पर पैड हम वो पैड भी वहां पे देते हैं ताकि उनका जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है वो और अच्छे से हो सके। और फाइनली एजुकेट अ रूरल चाइल्ड, मतलब हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे भी तबके हैं, उनमें फर्स्ट जनरेशन स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, उनका जो एजुकेशन है वो हम स्पॉन्सर करते हैं। एक बच्चे के लिए लगभग 1 साल का उसका पूरा का पूरा एक्सपेंसेस अगर हम निकाल लेते हैं तो वो कम से कम 30,000 के करीब करीब होगा। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, देन यू आर ऑलवेज वेलकम। इफ यू आर हैविंग सजेशंस इन ऑर्डर टू रन these 3 projects or initiative in a very well manner, those are always welcome। तो जैसे कि हमने पहले बता दिया था, अगर हम अकेले नहीं कर सकते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उसे लगने वाला जो टाइम है वो ज्यादा होगा, लेकिन हम सब साथ आके काम अगर करेंगे तो विद इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ऑल दिस थिंग्स वी कैन चेंज। और हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लविंग, जॉयफुल एंड पीसफुल वर्ल्ड क्रिएट करना है। उसके लिए हमें कुछ ना कुछ खुद ने भी करना पड़ेगा ना, क्योंकि दुनिया मतलब कोई अलग एंटिटी नहीं है, हम सबको मिला के ही दुनिया है। अगर हम पीसफुल, जॉयफुल एंड लवेबल हो गए तो डेफिनेटली वर्ल्ड भी हो जाएगा। तो आई होप इन अचीविंग दिस।
तो अगर आपको इन प्रोजेक्ट्स के बारे में और ज्यादा और अच्छे से जानना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में एंड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स वी हैव गिवन द लिंक्स ऑफ आवर फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल्स. You can visit there and you can get to learn more and more things. तो ये हो गई पूरी की पूरी बात रिगार्डिंग द व्हाट इज देयर इन दैट बुक, हाउ वी कैन परचेज दैट बुक एंड वेयर योर कंट्रीब्यूशंस विल बी गिवन. तो फाइनली आपको क्या करना है, अभी नीचे कमेंट बॉक्स में जाना है, एक पिन की हुई आपको कमेंट मिलेगी या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पहली जो लाइन होगी वहां पे जाके उस लिंक पे क्लिक कर दीजिए. वहां वो जो लिंक है वो दैट विल डायरेक्ट यू टुवर्ड्स द पेमेंट गेटवे और आपको जितना मर्जी पे करना है वो आप पे कर सकते हैं. Now, I hope that everybody will come here and we will help. Finally, I will thank all of you for patient listening and those who have pre-ordered book. Already we have our team has congratulated them once again. I want to congratulate all of them because they have started their journey towards self transformation and they have contributed something in order to change the world they live in today, because ultimately that we have to do. Somebody has to come out and somebody has to do that in order to change the world. Okay, finally, all of thank you all of you for patient listening and bearing with me for long. This almost 1 hour is completed, for bearing with me for this much long time. Stay home, stay safe, and take care of yourself. Have a great day. Thank you so much.